So before we start with the today's session, let us revise all the things that we have already done. We had started with something called as electrons, protons and neutrons, the structure of atom. You guys remember? Yes, sir. Yes. Then from there, we tried to understand the concept of electrons, and from electrons, because electricity is the term which comes from the term electra. Electra, electron, electricity, they all belong to the same family. So for that matter, we started with the concept of electron first, and then we went on with the concept of valence electron. You guys remember? Yes. So valence electron was very important concept. From there we reached to free electrons, and the concept of free electron was expounded in front of you all. Later we tried to understand like which all substances possess these free electrons. Those are conductors. We tried to classify all the substances present in nature into three categories. You guys remember? Conductors, bad conductors and semiconductors. Yes, bad conductors were called to be insulators, right? So it was conductor, insulator and semiconductor. That is what we tried to classify them as. Then we went on to the concept of metals, non-metals and metalloids. And as per the discussion, we agreed upon the fact that conductors only conduct the electrons. I mean, conductors only conduct the current electricity because of the existence of bunch of free electrons within them. Right? Only because conductors possess those bunch of free electrons, that is why it is going to conduct the electric current. Right? Then from thereafter we started to understand like every conductor which has got free electron with itself does not conduct electricity by default. What does this mean? If I pick up a given conductor in my hand without any potential difference, it is not going to give me shock. Why? Because electric current is not flowing. Why electric current is not flowing? Because there is no potential difference applied across it. Right? So we came to another conclusion that potential difference is compulsory. Potential difference is compulsory for the flow of electric current. Here we tried to take various examples, and we tried to put the potentials in place, and we drew a table, tried to fill that table, and there we understood three things. There can be three scenarios. One, there is no potential applied across both the ends. So potential at first end and potential at second end, both are zero. Because both are zero, the difference is also zero. 0 minus 0 is 0. So there is no potential difference. Because there is no potential difference, current will not flow. Second case, if I apply 5 volt here and 5 volt there, so if both the ends have got same potential, say 5 volt, then 5 volt minus 5 volt will become 0. Yes, no? Correct or not? Right? So 5 volt minus 5 volt is 0. So again there is no potential difference. So equipotential points do not have potential difference. So if you apply equipotential, equal potential is written as equipotential. Okay, if you apply equal potentials on both the ends, the current will not flow. Right? So it is mandatory, it is compulsory that you need to provide potential difference, the different potentials at both the ends, so that you can facilitate the flow of current into the conductor. Right? And this was the conclusion of our previous lecture. We tried to find some definitions of various things, like we had the definition of charge, we had the definition of current. You guys remember? Definition of charge we had discussed. Definition of current, that also we had discussed. Right? Then we tried to discuss the definition of potential. I gave you a formula. Work done per unit charge. You guys remember? If not, we'll start from there. Okay, we understood the potential thing, and then we went on. Right? So now today's target will be to understand the real concept of what exactly potential is, what exactly potential difference is, and how the things flow. Right? When I talk about conductor, so in what kind of conductor does the current flow? What exactly is the setup in the electrical dunya in which we are going to have the flow of current executed?
Right? So welcome to today's session. It is very empowering session. There are a lot of information to be conveyed on to. Be very alert because today we are going to discuss those concepts which are the foundation line of the entire chapter, not just chapter, entire electrophysics. Clear? Yes. So when you are open to such kind of concepts and lectures, assume that you are a scientist and behave like that. Be rational. Be totally attentive. Learn something today itself. Okay. So welcome to that session. We are starting. I'm just taking you to the board now. What does the current mean? It is flow of charge, right? So charge is basically represented by free electrons. So current signifies flow of free electrons, right? And if I want to measure the current value, what I do is I divide the total flow of current, these electrons, I mean total charge per unit time. So I will say current is defined as rate of flow of free electrons. But when I say free electrons, I am talking about negative charge. I'm talking about negative charge. Now understand this. Right? So whenever the negative charge or the free electrons move, we say that it is actual current. We say that it is actual current. Actual current always flows, understand this, actual current always flows from lower potential to higher potential. Yes, no? Right? But now there's one very important thing. In general, in all other branches of physics, the tendency of flow, tendency of fluidity, understand this what I'm trying to say. Tendency of flowing is always from higher potential to lower potential. What am I trying to say? Tendency of flow is always from higher potential to lower potential. Tell me, if suppose I have to get this particular thing drop up, so will this drop up or will this drop down? Down. Exactly. Why down? Because it has been held over here. So if I held it over here, it will drop down. So the general law of physics says, the natural law of physics says, everything flows from higher potential to lower potential. But current is flowing from lower potential to higher potential. So in the process of study, when the people started studying electrophysics, it became very much difficult to balance and compare and use the existing theories in current electricity. Okay, so just to make it convenient, so that we can use all the theories in the mechanics over here. See, because if the current is flowing, it is same as mechanics only. It has speed, it has velocity, it has acceleration, it has a lot of things around it, right? So it is also sort of mechanics only. So just to establish the understanding of mechanics, people assumed the current in the opposite direction. So they said this is negative charge. Let me consider pseudo मतलब झूठा positive charge. Pseudo positive charge is basically a corresponding positive charge. It has got everything same as negative charge except for one thing. Sir, what? Plus minus. And because of this, direction of this current changes. So now this current was used, this mechanism was used, this assumption was used just for one purpose. What was the purpose? To make the study of electrophysics equivalent to the already researched physics. Just to make the study of electrophysics equivalent and easy with respect to the already researched physics. People assumed this charge. So this charge is not the actual charge. It is called as conventional charge. Yeah, conventional current. Flow of charge. So it is
conventional current. I hope it is understood now. Right? Now this current starts flowing from higher potential to lower potential. Okay. Yes, please note this down. Just note it again for everybody. You can write here, flows from, right here, flows from lower potential to higher potential. Okay, and this flows from, उल्टा लिखना है इसके लिए, higher potential to lower potential, इसके लिए please write. कन्वेंशनल स्पेलिंग है इधर एन की जगह सी आएगा. कन्वेक्शन नहीं है, कन्वेंशन है. Just note this down. Noted? Write this also. Flows from higher potential. इसका उल्टा हो जाएगा. Okay. So now I'll tell you a few very important things and then the definition of few things. Okay. सबसे पहले अब हम सीखेंगे कि those conductors through which electric current passes, वो electric current pass क्यों होता है? Because there is a potential difference applied between them. Yes, you know how to apply the potential difference? How to apply? It means what? If suppose I have got a conductor like this, okay, and I want that electric current should pass from this point to this point. Unequal. Okay, so I will have to apply unequal potential in both the ends, right? How to do that, sir? We can connect a battery with this conductor. Now this is very interesting. What I've tried to do is, on both the ends I have connected a battery. Now this battery has got positive terminal at one side, negative terminal at other side. This is called as source of electric current. Okay, instead of battery, see, the battery is a DC source. It provides you DC current. Somebody had asked na कि सर मैंने तो खाली DC AC current सुना है. Now listen, है ना? तो अभी ये DC current है. क्या कौन सा current है? DC current. ऐसे ही AC current भी होता है. Mind it, ये DC करंट है और ऐसे ही AC करंट भी होता है. हमारे घरों में जो आता है ना वो AC करंट है. हमारे इन्वर्टर जो हम यूज करते हैं ना वो DC करंट है. ठीक है, ये फर्क है. घरों में जो आता है बाहर से वो AC करंट है. इन्वर्टर जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज DC करंट. नाउ अंडरस्टैंड दिस. When the current is when the conductor is connected to a battery, what happens is current starts flowing. So where will the current flow? This is positive, this is negative, so automatically this end of the conductor becomes positive and this end of the conductor becomes negative. Current starts flowing from battery to the conductor.
This is conductor, see, right? And then to this point, and then to this value. पक्का समझ में आ रही है बात? So this is the flow of the current. This is the flow of the current. Now suppose sir मेरे को कोई device चलाने का है, fan चलाने का है, light चलाने का है, no problem. You just attach the device anywhere you want on this path. अगर आपने मान लिया डिवाइस इस कंडक्टर पे ही लगा दिया, ये जो कंडक्टर है यहीं पे आपने डिवाइस लगा दिया, तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. सो सर दिस इज आर, दिस इज एक्चुअली डिवाइस, दिस इज एक्चुअली अ डिवाइस. ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये जो मैंने बनाया हुआ है, दिस इज अ सिंपल सर्किट. This is a simple circuit. ये मेरा कंडक्टर था, मैंने उसको एक डिवाइस लगा दिया, जैसे फैन लगा दिया बीच में, तो फैन को मैं फैन बनना यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? रेजिस्टेंस बना दिया. सर ये बैटरी लगा दी, तो बैटरी की वजह से बोथ दी एंड्स हैव बीन सेट टू डिफरेंट पोटेंशियल. बिकॉज दिस इज पॉजिटिव सो इट गेट्स सेट टू हायर पोटेंशियल. ये छोटा वाला नेगेटिव है ना, हमेशा याद रखना, बड़ा मतलब पॉजिटिव, छोटा मतलब नेगेटिव. इसको हायर और लोअर बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है. सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो एरो से मैंने क्या दिखाने की कोशिश की मालूम है? एरो से आई हैव ट्राइड टू शो यू द करंट. एरो से क्या दिखाया? एरो से क्या दिखाया? करंट. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको मैंने बोल दिया हायर पोटेंशियल, इसको बोल दिया लोअर पोटेंशियल. ये मेरा डायग्राम है, इसको हम लोग सिंपल सर्किट बोलते हैं. यहां से एक डेफिनेशन पैदा होता है सर्किट का. सर सर्किट का मतलब क्या होता है? सर्किट का मतलब देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं. व्हाट इज सर्किट? व्हाट इज सर्किट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और ये आप समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बिकॉज सर्किट ही बेसिक है. हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम सर्किट पे चलता है. व्हाट इज सर्किट? इट इज अ, या सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप made up of conductor, made up of, रुके ना क्या हुआ? अभी मीटिंग थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान दो, फिर हम वापस से ज्वाइन करेंगे. इट इज अ क्लोज्ड लूप मेड अप ऑफ कंडक्टर to which source is connected. Source is connected. यहाँ पे तीन बातें हैं. सबसे पहली बात है क्लोज्ड लूप. क्या? क्लोज्ड लूप. देखिए आप, ये क्लोज है कि नहीं? बंद हुआ ना. दूसरी बात, मेड अप ऑफ कंडक्टर. क्लोज्ड लूप, अगर मान लीजिए मैंने इंसुलेटिंग मटेरियल का बना दिया, करंट विल नॉट फ्लो, देन इट इज नॉट द सर्किट. फॉर दिस अरेंजमेंट टू बी अ सर्किट, इट इज कंपल्सरी दैट इट शुड बी मेड अप ऑफ कंडक्टर. And even this is not sufficient. It should have got the source. I was discussing about this. Source. What does the term source means? Source means there are two types of sources, DC source and AC source. Understand this. I'm writing this for you. There are two types of sources. Source of current. Yeah, sources of current. There are two types of sources of currents. Okay, the first source is DC source, battery, normal batteries that we have. Second source is AC source, the source that comes in our homes. Okay, that's AC source, right? So we have DC source and AC source. DC source gives you DC current, AC source gives you AC current. सर इसका मतलब DC AC current भी होता है क्या? हाँ. Yes, the current which has got the fixed magnitude all the time is called as DC. The current which has got changing magnitude with the time is called as AC. सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है. इसको हम एक टाइम के बाद पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपको इतना समझना है कि दो तरह के करंट्स होते हैं, डीसी और एसी, और इन दोनों करंट को देने के अलग अलग डिवाइसेस होते हैं. इसके लिए आपके पास बैटरी होता है, इसके लिए आपके पास ऑसिलेटर होता है. मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसके लिए आपके पास बैटरी होता है, बैटरी.
यू नो बैटरी, नॉर्मल बैटरी, यस। और इसके लिए आपके पास में ऑसिलेटर होता है, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर बड़ा अच्छा सा फंडा है, इसको हम बाद में सीखेंगे, अभी हमारा फिलहाल बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है इसके बैकग्राउंड में, वो सीख जाए फिर ये भी सीखेंगे, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस, अगर सर्किट के अंदर सोर्स नहीं है, मतलब सर सोर्स नहीं है मतलब मान लो कोई ऐसा एक लूप है, क्लोज्ड लूप, ये देखो क्लोज्ड लूप, दिस इज नॉट द सर्किट, व्हाई? सोर्स इसमें कोई सोर्स नहीं है सर, इसमें एक सोर्स होना चाहिए था कहीं, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है, कोई देगा ही नहीं, तो फिर आएगा कहां से? तो इसलिए नहीं आएगा, नहीं आएगा तो वो सर्किट नहीं है। तो सर्किट में सोर्स इज कंपल्सरी, इसलिए मैंने लिखा टू विच सोर्स इज कनेक्टेड, इफ इट डज नॉट हैव सोर्स, अब फंस गए। समझ आ रही बात है? पक्का? यस। अभी हर सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, अब जरा देख ले, हर सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सर कौन से होते होंगे कंपोनेंट्स, जरा नाम ले लीजिए ना एक बार। देखो मैं लिख रहा हूं, सबसे पहला सर्किट का कंपोनेंट होता है कंडक्टर खुद, दूसरा सोर्स, सोर्स माने कि बैटरी, सोर्स मतलब बैटरी, डीसी सोर्स, एसी सोर्स, इट डिपेंड्स, है ना। तीसरा की, या फिर आप इसको स्विच भी बोल सकते हो। हमारे घर में देखो सर्किट भी है और सोर्स भी है, लेकिन क्या 24 घंटा फैन चलता है क्या? नहीं सर, जब तक हम स्विच ऑन नहीं करते तब तक फैन नहीं चलता, स्विच ऑफ करते हैं तो बंद हो जाता है, चलता। करेक्ट है ना। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारे पास की और स्विच अवेलेबल है, तो ये भी सर्किट का हिस्सा है। सर इस सर्किट में तो की और स्विच है ही नहीं, जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट द कंपल्सरी हिस्सा, बट हाँ इट इज इंपॉर्टेंट हिस्सा, ठीक है। तो सर यहाँ पे अगर बाई चांस मुझे की डालना है तो कैसे डालोगे आप? बहुत सिंपल काम है, ये देखो मैं की डाल रहा हूँ, ये देखो मैं क्या करूंगा, ये की का सिंबल है ए देखो, समझे नहीं समझे? यस, की ओपन और क्लोज दो तरह का होता है, की जो होता है वो ओपन और क्लोज दो तरह का होता है, स्विच भी ओपन और क्लोज दो तरह का होता है ना। तो अगर आप चाहो तो स्विच को अलग से भी लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, ये देखो अगर मैंने बाई चांस स्विच को अलग रखा तो ये दोनों को दिखाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। सोर्स को दिखाने का तरीका हमारे पास क्या है सर? ऐसे, ये है सोर्स, नहीं तो फिर आपको बड़ा सोर्स बनाने का है तो सर एक बैटरी इधर, दूसरा बैटरी इसके आगे, तीसरा बैटरी इसके आगे, ये तीनों मिलाकर के एक सोर्स बन गया है, देखो। कैन यू सी दिस? एक चीज का ख्याल रखना, दोनों लाइंस के बीच में लाइन मत बना देना, देखो यहाँ पे भी मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पे भी दोनों लाइंस के बीच में लाइन नहीं बनाई गई है, ठीक है ना। बड़े और छोटे के बीच में लाइन मत बना देना, ओके, दिस इज व्हाट इट इज। तो ये पहला, ये दूसरा, ये दो एग्जांपल मैंने तुमको सोर्स का दे दिया। की कैसा दिखता है सर? की होता है ओपन की और क्लोज की। ओपन की मतलब स्विच ऑफ, ओपन है मतलब ये खुला हुआ है, मतलब सर्किट बंद नहीं है, सर्किट बंद नहीं है तो करंट नहीं फ्लो होगा, तो ये ओपन होता है। ओपन कैसे होता है सर? ओपन को हम ऐसे दिखाते हैं, बस खाली दो ब्रैकेट और ये, ठीक है। और सर क्लोज को कैसे दिखाते हैं? क्लोज को जैसा हमने दिखाया है, हमने क्या दिखाया है, बीच में एक डॉट भी आ जाएगा, ठीक है ना। दीज आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल पीपल, क्लियर? यस। इसके बाद हम बहुत सारी चीजों को इसके बाद समझते चले जाएंगे, बहुत इजी है। स्विच कैसे दिखाते हैं सर? स्विच बहुत सिंपल है, स्विच भी दो होता है, ऑन ऑफ। तो ऑन ऑफ करने के लिए देखो, अगर आपको ऑफ करना है तो ये आपका सर्किट है, ये आपका स्विच है, देखो ये ऑफ स्विच है, ऑफ। आप इसको दबा दोगे तो चालू हो जाएगा, है ना। तो सर चालू कैसे दिखाते हैं? ये देखो ऐसा, ये देखो दिखा दिया, ऐसा, यहां से ऐसा, यहां से इसको टच करने का, और ऐसा। कैन यू सी दिस?
कैन यू सी द डिफरेंस? यहाँ पे दोनों के बीच में गैप है और यहाँ पे दोनों टच है. Clear? Right? So this is the basic difference between open switch and closed switch. Off switch, on switch. Switch और key का काम एक ही है. The work done by switch and key is completely same. Okay? So you people don't need to worry. You people do not need to worry. अभी इसके बाद एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, बट फिलहाल इतना बता दूं रेजिस्टेंस को लिखा कैसे जाता है. रेजिस्टेंस को ऐसा लिखा जाता है, ऐसा. एक्चुअली हम और आप जो कुछ भी पावर, जो कुछ भी डिवाइस लगाते हैं, जैसे अगर हमने फैन लगा दिया तो फैन जो है वो सर्किट के बीच में होगा ना, बराबर ना. देखो ये आपके घर में आने वाला करंट यहाँ से आता है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्विच है जो आप ऑन ऑफ करते हो, और यहाँ से वायर निकल करके जो है वो घूम करके वापस आपके बोर्ड के अंदर आ जाता है. ठीक है ना, बराबर. यस, तो ये जो घूम करके वापस आता है उसी में बीच में कहीं पर फैन लगा होता है. तो आप जो फैन देखते हो ना, वो फैन को आपके बोर्ड में से एक वायर फैन के पास जाता है और फिर फैन के पास से एक वायर बोर्ड में वापस आता है. गेटिंग इट? और दोनों मिल करके फिर कहाँ जाते हैं? आपके बाहर वाले एक्चुअल डीपी में, जहां से करंट आ रहा है. क्लियर? जो आपके घर का मेन कनेक्शन है वहां पर जाता है, और ऐसे काम होता है. तो आपने जो फैन लगाया ना, वो रेजिस्टेंस है. हर वो चीज जो पावर खींचती है वो रेजिस्टेंस है. मेरे शब्दों को ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं. हर वो चीज जो पावर खींचती है वो रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस पावर को खींचता है. इसको आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए याद रखिए, फिर जैसे हम रेजिस्टेंस को डिटेल में समझेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बट फिलहाल आप समझ जाइए कि रेजिस्टेंस पावर को खींचता है. क्लियर? पक्का? एनर्जी को खींचता है, मजबूती से एनर्जी खींचता है. कौन? रेजिस्टेंस. क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं. सिक्स वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर. सेवेंथ एम मीटर. सर वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जरा बताइए तो. वोल्ट मीटर मतलब वोल्ट क्या है? पोटेंशियल, बराबर है ना. तो इस सर्किट के अंदर एक ऐसा डिवाइस भी होता है जो इसका पोटेंशियल मेजर करता है. सर्किट का पोटेंशियल मेजर करता है. एक्चुअली वोल्ट मीटर गिव्स यू पोटेंशियल डिफरेंस. आप सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप जाएंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. अभी हम इसको थोड़ी देर में समझेंगे, है ना. बट याद रखिए आप कि वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, इसलिए उसका नाम है वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर मेजर करने वाला, थर्मोमीटर. समझ में आया अभी? जो थर्मो यानी टेम्परेचर मेजर करता है, ऐसे वोल्ट मीटर करंट है ना, करेक्ट है ना, जो कि वोल्ट को मेजर करता है. सर इसको कैसे लिखते हैं? दिखता कैसे है? एक सर्कल होता है, सर्कल. उस सर्कल में आप यहाँ पर बीच में V लिख देते हो तो ये वोल्ट मीटर हो जाता है. उसी सर्कल को आपने यहाँ पर ऐसा सर्कल बनाया और यहाँ पर A लिख दिया तो ये एम मीटर हो गया. ये सर्किट से कनेक्टेड होता है, ये भी सर्किट से कनेक्टेड होता है, सर्किट के बीच में होगा, मिलेगा आपको. ठीक है, बराबर. यस, तो ये एम मीटर है. सर एम मीटर क्या होता है? एम, हमने एम सुना हुआ है. करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. एम्पियर्स. तो जो एम्पियर को मेजर करे वो एम मीटर, जो वोल्टेज को मेजर करे वो वोल्ट मीटर. क्लियर हो गई बात? Right? Yes. So you guys have to just write these components and remember them in your brain. These are the components of a circuit. These are the components of a circuit. Please write it down quickly. Write this down very quickly. The people who are looking at recording will pause the recording and then start writing.
मैंने ये जो सर्किट बनाया हुआ है, इस सर्किट के अंदर 5 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। इसका मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस बैटरी के अंदर 5 वोल्ट है। और इस सर्किट के अंदर विच इज द कंप्लीट कंडक्टर, करंट इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली, राइट? Yes. Now you guys tell me at the points A, B, C, D, would there be any potential or not? Would there be any potential or not? At the point A, would there be any potential? At the point B, would there be any potential? At the point C, would there be any potential? At the point D, would there be any potential? बोलो। Would there be any potential or not? At the point A, would there be any potential? हाईएस्ट 5 है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं लोएस्ट 0 है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है? तो 5 से 0 क्या ये सीधा डायरेक्टली आ गया? नहीं ना, 5 से कम होते 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 फिर ना 0 हुआ होगा, है ना? तो 5 से कम होते 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 मतलब कंटिन्यूअसली 5 से कम हो रहा है। Yes कि no? So if I try to trace the direction of current, so every point which is coming later, must be having the lower potential than the previous point. Yes or no? Yes. Else why will the current flow? अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक बात बताओ, ए और बी के बीच में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। बैटरी लगा दिया, करंट चालू है, तो ए और बी के बीच में वेदर करंट इज फ्लोइंग और इट इज नॉट फ्लोइंग? Flowing. ओके, वेरी गुड, करंट इज फ्लोइंग, शाबाश सिद्धि। नाउ द पॉइंट इज, कहां से कहां फ्लो हो रहा है? From higher potential to lower potential. दिस इज द जनरल आंसर, बट इस सिचुएशन में कहां से कहां फ्लो हो रहा है? From A A, to B, B. C, D. Very good. From A to B. So if the current is flowing from A to B, so as per you, you tell me, these 2 points will be at equal potential or different potential? Different potential. Different potential. Different potential. Different potential ना? इसका मतलब potential at A is different than potential at B. Correct or not? Yes or no? Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब हुआ पोटेंशियल एट सी इज अगेन डिफरेंट, पोटेंशियल एट डी इज अगेन डिफरेंट। यस नो? राइट? यस। अच्छा, नाउ यू टेल मी, इसका पोटेंशियल वी है, इसका पोटेंशियल वी बी है, तो हुज पोटेंशियल इज ग्रेटर? ये वी इज ग्रेटर। A. Sir, VA is greater. VA is greater than VB. Yes or no? Right? So current is flowing from A to B, then from B to C, and C to D, and so on. So automatically it will have VC. This will have VD. Yes or no? Yes, sir. Potentials are different. If they all are different, they must be in this. So no? पक्का ना? पक्का? So if today I say, समझ में आ गया ना? ये बात तो हो गई ना? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। So if today I stand up and say, this is a note for you people. Every point in a circuit has
या हैव डिफरेंट पोटेंशियल। सुनो, Yes. क्योंकि कहीं पर भी इक्वल पोटेंशियल हो गया तो करंट वहीं पर रुक जाएगा। अगर इनके बीच में पोटेंशियल होगा तो करंट इसके बीच में फ्लो ही नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा तो पूरा सर्किट बेकार हो जाएगा। Getting it or not? Yes. So every point in the circuit have different potential। ये पहली बात हुई। पक्का? दूसरी बात बोलूं? दूसरी बात, in the direction of current, हम लोगों ने एक बात सीखी, बताओ क्या? In the direction of current, बताओ क्या? Potential, Decrease of the very good. Potential keeps on decrease. on decreasing। पक्का? सो इसका मतलब क्या हो रहा है? हर पॉइंट के पास में डिफरेंट पोटेंशियल है और करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल कंटिन्यूअसली गिरता रहता है। इसका मतलब देयर इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट। क्या बात है सर, क्या कंक्लूजन निकला? Yes कि no? What is conclusion? That there is potential difference between any two points in the circuit. Yes or no? तो इसका मुझे एक कंक्लूजन मिलेगा, मैं इतना बड़ा नहीं बनाता हूं। इस बात का, इन दो नोट का मुझे एक कंक्लूजन मिलने जा रहा है। कंक्लूजन क्या है मैं लिख रहा हूं, देखो ये जो कंक्लूजन मिलेगा ये क्या मिलेगा, देखो आप लोग। ये तीसरा पॉइंट है, कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन मिला? Every different point. There is always the potential difference between any two points। आप कोई भी दो पॉइंट उठा लो इन ए सर्किट, उसमें इस बात की गारंटी है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही होगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। There is always the potential difference between any two points in the given electric circuit. That's going to be the case. I think camera is. Now this is what it is. Okay. Okay. So this is the third point, that there is always the potential difference, right or not? Akka? Yes. So now you will write this. मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। हम अभी तक खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, 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 और सारे पोटेंशियल अलग अलग हैं। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये समझ लिया। क्योंकि हमने ये समझ लिया तो हमारे दिमाग में एक बात तो पक्की हो गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये हम देखेंगे, पर पहले ये लिख लो। ये हेडिंग डालना है, ये यूनिट है। यूनिट मत लिखना आप अभी, चाहिए तो ये मत लिखो अभी चलेगा। वी जस्ट ड्रॉ दिस सर्किट एंड राइट दिस अप। जल्दी बेटा। ये मैंने सब कुछ लिख रखा है, तो रिपीट कर रहा हूं। When I'm saying electric potential, तो इसका मतलब क्या होता है? There are definitions। तो एक definition मैं आपको यहाँ पर explain करने की कोशिश कर रहा हूँ। This is very very important definition and you need to understand it. Okay, right? Now listen. Definition है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और नहीं होता सर, वर्क डन ही होता है। क्या होता है? वर्क डन होता है। पर एक कौन सा वर्क डन होता है सर? क्या काम करते हैं हम जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं? तो सुन लो, यहाँ पे लिखा है वर्क डन। कौन सा काम?
in moving a unit positive charge. कितना चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अगर आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने का है तो आपको जितना काम करना पड़ेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. सुनो, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. अभी जरा सुनो सर, कहां से कहां मूव करना है? फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है. प्लीज लुक इनटू दिस सर्किट. ठीक है, बराबर. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है सर? कंडक्टर के अंदर. सर्किट में है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है? सर्किट में. सर्किट में है कि नहीं है? पक्का? यस. मैं क्या करूंगा, एक चार्ज जो इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी मतलब कहीं तो है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंफिनिटी का मतलब पॉइंट अननोन, नहीं तो फिर सोर्स अननोन. क्या? पॉइंट अननोन नहीं तो फिर सोर्स अननोन. कहीं तो है सर पड़ा हुआ, मुझे मालूम नहीं, बहुत दूर पड़ा हुआ है, सर्किट से बहुत दूर पड़ा हुआ है, एक चार्ज पड़ा हुआ है. सर वो चार्ज कैसा होना चाहिए? चार्ज कैसा होना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इसको हम बार बार यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में, इलेक्ट्रोफिजिक्स की पूरी दुनिया में. जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो बार बार अगेन एंड अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फॉर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट. फॉर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट वी यूज दिस चार्ज. दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज. इसे देखो मैंने सर्कल करके लिखा हुआ है, टेस्ट चार्ज. Okay, so now understand this. My unit positive charge is available here, somewhere in the infinity. I want to bring this positive charge at this point. At this point. Understand this. Sir, ये point कौन सा है? A. ये point कौन सा है? B. ये point कौन सा है? C. और ये point कौन सा है? D. है ना? Yes, no? Yes. अच्छा, मुझे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठा करके यहां पर लाना है, बराबर ना? तो मैं कुछ काम करूंगा. कितना काम करूंगा सर? कितना काम करूंगा? WA. कितना काम करूंगा? कितना काम होगा? जल्दी बोलो सर. यहां पर लाने के लिए काम होगा WA. अच्छा, यहां पे लाने के लिए काम कितना होगा? WB. क्या बात है सर. सर WB. अच्छा, यहां पे लाने के लिए काम कितना होगा? WC. सर यहां पे लाने के लिए WC. और यहां पे लाने के लिए काम कितना होगा? WD. WD. समझे कि नहीं समझे? पक्का ना? पक्का? यस कि नो? अभी जरा आप देखिए. यस सर. हमारे पास WA, WB, WC और WD ये चारों अवेलेबल है ना? अवेलेबल. यस सुनो. यस सर. अब आप लोग से एक सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ इन सब में से बड़ा छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा वर्क किधर करना पड़ेगा? इधर लाने के लिए करना पड़ेगा कि इधर लाने के लिए करना पड़ेगा कि इधर लाने के लिए करना पड़ेगा कि इधर लाने के लिए करना पड़ेगा? चार. WD. WD. WD पे सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. WD. पक्का? पक्का ना? And you all are wrong. You all are wrong. सबसे ज्यादा वर्क आपको WA पर करना पड़ेगा. सर क्यों? यहाँ पे सबसे, ये तो सर एकदम नजदीक है. आपने बोला यहाँ से यहाँ लाने, तो सबसे नजदीक है. बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ बात नजदीक की नहीं है. चार्ज क्या है? पॉजिटिव. चार्ज क्या है? पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेकर आना, क्योंकि इधर भी देखो पॉजिटिव है. पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास आप लेके आओगे तो पॉजिटिव धक्का मारेगा. आपको ले आके इसको जबरदस्ती यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा. जबरदस्ती. यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात का भी है कि आपको पॉजिटिव उठाकर पॉजिटिव के पास लाना है. तो ये जितना धक्का देगा उससे ज्यादा धक्का आपको लगाना पड़ेगा.
तो यहाँ तो आपको ट्रेवलिंग का एनर्जी लगेगा ही, धक्का को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये एनर्जी बढ़ गई। और आप जैसे जैसे पॉजिटिव से दूर जाते चले जाएंगे, कम से कम धक्के की एनर्जी आपकी कम होती जाएगी। समझ रहे हो क्या? ये कम धक्का मारेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये पॉजिटिव से थोड़ा दूरी पर है, ये वाला पॉजिटिव से और दूरी पर है, तो ये और कम धक्का मारेगा। ये सबसे दूरी पे है, इसलिए सबसे कम धक्का मारेगा। तो इसकी वजह से आपको जो वर्क मिलने वाला है वो ऐसा मिलने वाला है। WA is greater than WB is greater than WC is greater than WD। मेरी बात आपको समझ रहे हैं? ये सब चीजों को मैंने जानबूझ के लिख दिया ताकि आप थोड़ा सा परेशान हो जाए। राइट? WA is greater than WB is greater than WC is greater than WD। वर्क डन बढ़ रहा है यहाँ पर कि कम हो रहा है? सर वर्क डन कम हो रहा है। जब आप यहां से जाएंगे तो वर्क डन कम होगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। पक्का? पक्का? अभी सेम एग्जांपल, सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 कूलम है, कितना? 5 कूलम, मुझे कितना चाहिए? एक। एक्चुअली 1 कूलम नहीं होता है, बट ठीक है, यूनिट चार्ज बोलते हैं हम लोग उसको। तो मान लो सर यहाँ पे 5 कूलम है और मुझे इसको यहाँ पर लाना है, तो कुछ तो वर्क होगा। अगर यहाँ पे 1 कूलम होता तो वर्क जितना किया मैंने उसका अपॉन 5 हो जाता है कि नहीं? है कि नहीं है? है ना? तो सर WA, मान लो यहाँ पे Q कूलम चार्ज है, Q, तो WA बाय Q, WB बाय Q, WC बाय Q और WD बाय Q डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसी WA बाय Q को ही हम लोग VA बोलते हैं। इसी WB बाय Q को ही हम VB बोलते हैं। इसी WC बाय Q को ही हम VC बोलते हैं। और इसी WD बाय Q को हम VD बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अभी समझ में आ गया? पक्का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं किसको है? ध्रुवी परमार। You want to say something? Switch your microphone on and then speak if needed. Okay. So you have the situation like this. Clear or not? Clear or not? पक्का? तो हमारा ये जो डेफिनेशन है कि सर V होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं किसको है? It is work done in moving the unit positive charge। मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझे क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना? इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट। तो आप जिस पॉइंट पे लेकर आएंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अगर आप A पर लेकर आए तो ये VA हो जाएगा, ये WA हो जाएगा। अगर आप B पर लेकर गए तो ये VB हो जाएगा, ये WB हो जाएगा। अगर आप C पे लेके गए तो सर ये VC हो जाएगा, ये WC हो जाएगा। अगर आप D पे लेके गए तो ये VD हो जाएगा और WD हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। यस? पक्का? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसीलिए जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते चले जाएंगे, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्किट के अंदर कम होता चले जाएगा। मतलब आपको जितना काम करना पड़ेगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज से दूर हो गए। समझा क्या? This is what it is. Yes, sir. I hope it is understood now. Right? Yes, sir. पक्का? तो आप लोग ये जो पार्ट है, मैं देखो यहाँ पे तुमको बना के दे देता हूं। इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कहीं पर लिखिए। आपको एग्जाम में इतना पार्ट लिखना है, यह आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके भी सबको दे दूंगा। जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप तुरंत ये वीडियो ओपन करके यहाँ का पार्ट देख सकते हो। YouTube लिंक अवेलेबल रहेगा। एनी टाइम यू फील डिफिकल्टी और प्रॉब्लम और एनीथिंग, यू सिंपली गो एंड फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड लुक एट दिस लिंक। आपको ये सारा इंफॉर्मेशन फिर से खुल करके मिल जाएगा। क्लियर? प्लीज नोट दिस डाउन। या अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जहां लिखना है वहां पर लिखो। आपको एग्जाम में ये चीजें लिखनी है। इसलिए कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला सेकंड डेफिनेशन भी है
which is called as potential energy. This work done is converted into potential energy. इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों बोलते हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप जो भी काम करेंगे यहाँ से उठा के वहां पे लाने के लिए, वो सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा. तो इसीलिए वो जो पोटेंशियल एनर्जी डिपॉजिट हो गई, दैट इज इक्वल टू द वर्क दैट यू हैव डन. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क दैट यू हैव डन, राइट. तो पोटेंशियल एनर्जी में से एनर्जी को निकाल दीजिए तो पोटेंशियल बचता है. सर एनर्जी को कैसे निकालेंगे? बाय डिवाइडिंग बाय चार्ज. So if you divide by charge, energy is released and you get just the electric potential. Please do it. Done. Potential into charge is energy. That is electric potential. I've tried to explain the electric potential in the easiest possible way to you people, with all the concepts becoming very crystal clear. In the coming higher standards, when you'll prepare for either medical or engineering, or if you want to become scientist, and you enter into 11-12 science standards, you will find these things to be very, very special. And these notes of yours will really help you out in cracking those examinations as far as basics are concerned. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इन notes को separate बनाओ, अच्छे से बनाओ और अपने पास संभाल कर रखो, because these notes have got the power to convert you into scientists. Do it. हाँ. V into P equals to energy. V into P equals to energy. वही बोला, potential into charge is equals to potential. Yeah. हो गया? इसके बाद एक नोट लिखना है, एक नोट भी लिखना है. Start writing the note. Those who have not completed this, if you are looking at recording, please pause the video and complete in recording. Just pause the video right now and then you can, at this point if you reach, just pause the video, write it completely and then start writing what I say. ठीक है ना? Right? What I'm saying, just start writing now. Note. The total work done. The total work done. The total work done in moving the charge, from infinity to the point in circuit, yeah, in field. Total work done in moving the charge from infinity to the point in field. Total work done in moving a charge from infinity to the point in field is stored in the form of potential energy, is stored in the form of electrical potential energy. Like this, is stored in the form of electrical potential energy, is stored
in the form of electrical potential energy. इस नोट का एक बहुत जबरदस्त मतलब है। इस नोट में और वोल्ट यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में एक छोटा सा अंतर है। इस नोट में और ये जो हमने डेफिनेशन लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसमें एक बहुत ही छोटा सा अंतर है। सर क्या अंतर है? आपने यहां से कुछ चार्ज लाया और ए पर रख दिया, तो आपने जितना काम किया वो सब पोटेंशियल एनर्जी है। पर अगर आपने उस काम को चार्ज से डिवाइड कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसलिए देखो यहां पर ये लिखा हुआ है इन मूविंग द चार्ज नहीं लिखा है, लिखा है क्या इन मूविंग द चार्जेस? नो। कितना चार्ज मूव करना है यहां पर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जब आप सिर्फ चार्ज की बात करते हो, जब आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से मतलब नहीं है, टोटल चार्ज से मतलब है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और वहीं पर अगर आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर दी, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो तुरंत वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। समझ आ रही है बात? जैसे हम आम लेने गए, सुनना है, हम आम लेने गए, हमको अल्फोंसो मैंगो बहुत पसंद है, हमने 12 आम लिया, 50 रुपए का एक आम हुआ था, 600 रुपए हमने उसको दिया। सुनना, तो हमने अगर 12 आम खरीदा और 600 रुपया दिया, तो 600 रुपया अमाउंट है, रेट नहीं है। समझा क्या? 600 रुपया क्या है? अमाउंट है, अमाउंट। और प्राइस है, प्राइस है 600 रुपया, रेट नहीं है। रेट क्या है? एक का रेट क्या है? 50 रुपया। रेट मतलब एक आम। समझे नहीं समझे? हमने 12 आम लिया 600 रुपए का, तो प्राइस हो गया 600 रुपया और रेट कितना हो रहा है? रेट कितना है? 50 रुपया। समझे ना? तो प्राइस और रेट में कैसे डिफरेंस होता है, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सारे चार्जेस की एनर्जी मिलाकर, जितने चार्ज आप यहां से लेके यहां पर आओगे, सारी की एनर्जी मिलाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। पर जैसे ही आप उसको पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट कर लोगे, वो तुरंत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ रेट एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज अ प्राइस, इज अमाउंट। क्लियर? पक्का? तो मैंने बहुत क्लियर करने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूं ये क्लैरिटी आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है? जस्ट नोट दिस डाउन। और जो मैंने नोट बोला वो भी आप लोग दिमाग में बिठाएं। इवन नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं चाहता हूं कि आप लोग दिमाग में बिठा लें। वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जबरदस्त चीज है ये, जबरदस्त चीज है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका मुझे आंसर देना। मैं सर्किट फिर से वही सेम सर्किट बना रहा हूं जो मैंने तब बनाया था। ये रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ये ऐसा है, ये बैटरी है, ये यहां पर आ गया। ठीक है? ओके। अभी करंट फ्लो होगा तो सर इस डायरेक्शन में होगा, है ना, और इस डायरेक्शन में होगा। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बना देता हूं। तो सर ये आपने पॉइंट बना दिया, मान लो ये आपने पॉइंट बना दिया ए, ये आपने पॉइंट बना दिया बी, ये आपने पॉइंट बना दिया सर सी, और आपने ये वाला पॉइंट बना दिया डी। ठीक है ना? पक्का ये मैंने पॉइंट्स बना दिए, है ना? अब मैं आपको सवाल पूछूंगा, फटाफट मुझे बताना। ठीक है? अभी देखो, यहां से इलेक्ट्रिक, यहां से यहां पर चार्ज आया, तो कुछ तो पोटेंशियल उसके पास होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी उसके पास। तो उसके पास पोटेंशियल कितना है? V है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? W है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल।
ठीक है बराबर। सर पर यूनिट चार्ज करेंगे तो कितनी एनर्जी है, इतनी है सर, बराबर है ना, पक्का। अच्छा जब हम यहां पर गए वीबी में, यहाँ वी में, तो सर इसके पास पोटेंशियल कितना है वीबी, और सर वर्क डन कितना है, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कितनी है डब्ल्यू बी, बराबर है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है डब्ल्यू बी। सर पर यूनिट चार्ज करेंगे तो इतनी है, बराबर है ना, पक्का। तो इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, इतनी है, और इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, इतनी है, पक्का ना। मतलब डब्ल्यू ए अपॉन क्यू और डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, राइट। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना, क्या डब्ल्यू ए अपॉन क्यू बड़ा या डब्ल्यू बी अपॉन क्यू बड़ा, कौन बड़ा दोनों में से, अंकिता कौन बड़ा, सर डब्ल्यू ए अपॉन क्यू परफेक्ट। डी ए। सर डब्ल्यू ए अपॉन क्यू बड़ा है, ये उससे छोटा है, फिर उसके बाद वाला उससे छोटा होगा, उसके बाद वाला उससे छोटा होगा, है ना, तो सर ये बड़ा है, पक्का ना, पक्का है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो चार्ज है उसके पास ज्यादा एनर्जी है। अगर मेरे पास एक यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ के यूनिट पॉजिटिव चार्ज के पास में ज्यादा एनर्जी है, और यहाँ के यूनिट पॉजिटिव चार्ज के पास में कम एनर्जी है। यस कि नो, यस नो, पक्का ना। अब जब यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन इधर मूव होएगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी का लॉस होगा, होगा कि नहीं होगा। यहां से जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होगा तो कोई भी चीज जब मूव होता है तो एनर्जी कंज्यूम करता है ना, एनर्जी उसकी खर्च होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी का लॉस होगा, होगा कि नहीं होगा, राइट। यस, तो कितना लॉस होगा, कितना लॉस होगा सर, डब्ल्यू ए बाय क्यू माइनस डब्ल्यू बी बाय क्यू, इतना लॉस होगा ना, यानी कि वेरी गुड, यानी कि वी ए माइनस वी बी, इतना लॉस होगा सर। क्या लॉस होगा, वी ए माइनस वी बी, क्या लॉस हुआ, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली क्या है सर, दिस इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पक्का। यस, ये लॉस क्यों हुआ, क्योंकि उतना ट्रैवल कर लिया, क्योंकि इसने इतना काम किया, क्योंकि इसने इतना काम किया, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, उसने काम किया ना, ये देखो मैं लिख रहा हूं वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां तक वो पुराने डेफिनेशन जैसा ही है, लेकिन अब देखो यहां पे बदलेगा, वहां पे था फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन कंडक्टर, और यहां पे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर point. Can you see this? From one point to another point in the field या within the field, within the field। फर्क समझ में आ गया क्या आप लोगों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फील्ड। समझा क्या, पक्का। उसको हम वी ए वी बी लिखते थे, तो सर इसको क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इट इज वी ए बी, इट इज ये वी ए नहीं है, ये वी बी नहीं है, ये वी ए बी है। ये कैसे मिलेगा वी ए बी इज ऑब्टेन्ड बाय वी ए माइनस वी बी। समझा कि नहीं समझा,
right? Please note this down. VAB is equals to VA minus VB. Okay. Guys, this is very important. You must write this part up. Somewhere you write. It's not necessary that you should write into this itself, but somewhere you need to write this so that it can be very much clear to you. So you can write this up in this, then write this and make some box and do something like this, just to keep it separate, but it is to be written. It is for you. इसका भी unit same होता है. Unit is same. So unit जो होता है unit is volt only. Volts या volt only. इसका भी unit same होता है. सर वो अच्छी है साउथ इंडियन जो आपके बात करते हैं Okay, so this completes today's lecture. Your work would be to go through your textbook, read the things very properly, and then in the coming lecture, we are going to discuss Ohm's law and all those things. Okay, we'll see Ohm's law, resistance, and then the arrangement of resistances. These are three very important things. Okay, so we are going to see that. Till that particular time, at least this is what you need to get across completely. Okay, there are 3 videos links I will share with sir will share with you. Those 3 video links, you just if you want to, because you would have written entire notes, so you don't need to really go through those links if you have made the appropriate notes. If suppose you want to go through those lectures back again, so those links are available with sir. He will share with all of you. Go there on the YouTube site and just look onto those videos. Those videos will give you the complete recap of the previous lectures along with this video. Okay, right? Besides this, try to solve some numericals if you people can from your textbook. Because if you have already practiced the things well from your side, it will help you all people to understand better. Practice makes everybody perfect. So take some initiative, become proactive, and start doing it. Feel as if you are a scientist. Because you're doing science, you people are young-minded students, so you guys can consider yourself to be scientists and behave accordingly. Right? So see you all in the next lecture. Take care. Bye-bye. Good night.